Also. Yes. Hello everyone. Thank you for coming to today's sessions. I welcome you all. And I would like to introduce our guest for this lecture, Udita Bahadur, our alumni of 2014 batch. And बाकी सब तो बता ही दिया है वासु ने. I want to tell only one thing, that from the beginning of 2010, Udita was very obedient, sincere and studious student, and that's why she is favorite student till now. अभी भी वो हमारे कम्युनिकेशन में रहती है, अभी भी हमारे को गुरु पूर्णिमा टीचर्स डे पे विश करती है. Thanks, Udita. Thank you so much. Thank you. Now I think Udita ज़्यादा अच्छा अपना पूरा journey and all experiences, yes, and उसके जो भी work profile है, she will explain better than me. So now Udita, you start. Yeah, thank you so much. We have very less time, and in short time you have to complete. Yeah. So सबसे पहले तो मेरे सारे faculty को प्रणाम. Thank you so much. Because of all of you, I'm here. So yeah, and yeah, let's start. I'll just share my screen. 1 second. Can you see my screen, ma'am? Screen दिख रही है? Yes. Yeah. Visible. Okay. So let's start. Why I have chosen my title as living my dreams with cybersecurity, because it is my dream and that's why I'm living over here. Since cybersecurity, no one knows, right? सबको पता होता है software development है, testing है, ये है वो, but कोई नहीं जानता है कि at least security is also important. जिस तरह हम अपने घर में security provide करते हैं, that's why we have to secure our system also. So that's why. So let's start. So here is the agenda for today, and first I'll introduce myself to you all, my journey, and then we'll go through on cybersecurity overview, then PKI overview, where PKI means public key infrastructure. I think third year or fourth year student might be aware of that in cryptography. So in that particular thing, I'm working on it. So I'll just show you how, like in company, how we are working. And then public key cryptography, then digital certificate, and then how we are securing our website. Okay. And then the last session, last 10 minutes would be for question answer session. Like if you have any queries, then you can go ahead and you can ask the questions. So let's start. So yeah, so as you all know, my name Udita Bahadur. So right now I am working in Honeywell as an advanced cybersecurity architect. So I am having total 7 years of experience. Earlier my first company was Vodafone, where I worked for almost 4.9 years. I joined there in September 2014 till June 19. And then I worked in Wipro. It was only for 4 months. So in Wipro, there was no technical journey for me. I mean, I was on bench, so I resigned over there. And then I joined Standard Chartered Bank. Again, it's 1.10 years over there. So I recently resigned Standard Chartered and joined Honeywell on 13th of September this month. So yes, it's 2 weeks only in Honeywell for me. And yeah, so basically I am from Darbhanga, Bihar. So those who are from Bihar, they might be aware of the place, but not sure about others. And currently I am in Bangalore. So the moment I passed out, I went to Pune, and then from there, my first job posting was in Bangalore. So from that time, I am in Bangalore. And this is my email ID. Those who are interested, you can note it down. And if you have any queries, you might reach out to me after this session. Okay. So yeah, let's go ahead. So yeah, I'll show you my journey. What is my journey? So I started my college at 2010 to 2014, and then 2014 to till present, it's my professional career. And personal life, why I have mentioned as from February 2021 to present, because now I am married, so that's why. So this is all my pictures.
how I was looking in 2010, then in first year, second year, third year, and fourth year. And this is my professional career for all my companies. Like this is my first company, Vodafone. So I spent almost 5 years over there. So I mentioned, I put down my pictures also. And then in Wipro, it was only for 4 months. So I don't have any photo of that. And I joined Standard Chartered. So I kept that picture also. And since it's COVID time, so I didn't went to office. I have my ID card of Honeywell. So I have posted over here. And from February 2021, I got married in February. So yeah, this is my journey which I am having right now, and journey to my dreams. Why I'm saying, because yes, I since I every time I want, like when I was in college, I was like, okay, I have to do something so that my parents can be proud of myself, and my faculty, they will feel proud. Okay, she's Udita Bahadur, she's working over there. So yes, and this is my achievement. Like in second year I was topper, even in all the years, but yes, second year क्योंकि उस time हमारा function था, तो then I got all these awards. So I remember, like in first year, if I tell you, in my first semester, my percent was very less. I mean, I got 66% in first semester, but thanks to Archana ma'am, I think I don't know whether she has joined today or not. The call, she is for first year. So Archana ma'am, she told me that in second semester, she was chemistry faculty for us. तो she told me that उदिता मतलब क्या है, कुछ कुछ भी मुश्किल नहीं है, कर सकती हो तुम, थोड़ा ट्राई करो, अच्छे से पढ़ो. क्योंकि मेरे मिड सेम में बहुत ही बकवास मार्क्स आए थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट. मतलब मुझे लगा कि अरे मैं क्या कर रही हूँ. एंड देन मैम भी बोले कि ये क्या है, मतलब इससे क्या होगा तुम्हारा, तुमको कुछ बनना है या नहीं बनना, मतलब क्या करोगी तुम. मैं बोला यार सही है, मैम भी सही बोल रही है. तो फिर उसके बाद देन आई फोकस्ड ऑन माय स्टडी. See, the thing is, basic funda is you have to prioritize your thing. आपको अपना फ्यूचर है, अगर आपको सिक्योर करना है तो आपको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी. कुछ लोग आते हैं इंजीनियरिंग में, लाइक ओके ठीक है 4 साल मस्ती कर लिया, उसके बाद 4 साल के बाद वो उनको दिमाग आता है कि अरे मेरे सारे फ्रेंड्स प्लेस्ड हो गए, मैं तो यही बैठा हूँ, अब मैं क्या करूँ. राइट. सो आपको पहले से फोकस्ड रहना है कि आपको अपने लाइफ में क्या चाहिए. सो दैट्स हाउ. तो अगर आप फोकस्ड रहोगे, देन ओनली यू विल अचीव एंड यू विल गेट द थिंग्स इन द राइट मैनर. ओके, सो इट्स नेवर टू लेट, वेदर यू आर इन 8th सेमेस्टर और इन 7th सेमेस्टर, तुम्हारे कितने मार्क्स आए, क्या है, कोई कुछ नहीं पूछता. एट द एंड 4th ईयर के बाद क्या पूछेंगे, प्लेसमेंट हुआ, कैंपस हुआ. Okay, this is the only question everyone will ask. So don't bother about marks and all, but yes, you have to prioritize Sorry for interruption, Udita. no problem, sir. Yeah, please go ahead. Archana madam is in front of you. Oh, Hello. hi ma'am, but I can't Hi, see you. Udita. How One are you? second. Ma'am, I'm fine, but मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ. Just a moment, मुझे थोड़ा स्क्रीन मैक्सिमाइज करना पड़ेगा. अर्चना मैडम, आप थोड़ा बैठ जाओ कुर्सी पे, आपका सिर्फ देख लो ऊपर सिर नहीं दिख रहा. ओके मैम. मैम आप हाँ, दिख नहीं रहे मुझे. मैम अभी अभी दिख मैं रही नहीं मैम, आपको बैठना पड़ेगा. अच्छा, एक मिनट मैं बस देख रही हूँ मेरे मोबाइल से नाम. हेलो उदिता. हेलो मैम. तो मैम मैं how अभी are you? आपकी बारे में बात कर रही थी कि आपने It's मुझे कैसे nice to सेकंड see से. you. She is my one of favorite student. बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही थैंक अच्छी. यू मैम. Very brilliant, intelligent. बहुत अच्छी है. थैंक यू सो मच मैम. मैम तो बस मैं अभी आप ही के बारे में बता रही थी कि कैसे आपने मुझसे मिड सेम के बाद मुझे डांट लगाई कि ये क्या कर रही हो. बिल्कुल भी पढ़ती लिखती नहीं हो तुम. एंड देन सॉरी आई एम गेटिंग इमोशनल, बट मुझे याद है कि उस वक्त मैम मुझे कैसे बोल रही थी. तो या इन जस्ट अ मोमेंट. I never forget. आप म्यूट हो अर्चना मैडम, आप म्यूट हो.
मैं कभी नहीं भूलती अर्चना मैम की बात। मतलब इवन फ्रॉम मैं फर्स्ट ईयर भी मैंने पास कर लिया, बट मैं हर सेमेस्टर में मैम के पास जाती थी कि मैम मुझे इतने परसेंट आए हैं, तो मैम ये क्या बहुत अच्छा है बट इससे भी अच्छा कर सकती हो। तो शायद दैट वाज माय मोटिवेशन कि ओके अगर कोई मुझ पे इतना भरोसा करता है, देन आई शुड never let them down. तो yeah, and one more thing my mom told me when I came कि बेटा 4 साल मेहनत करोगी तो अपने 40 साल आराम से की जिंदगी बिताओगी, अगर 4 साल मेहनत नहीं करोगी तो 40 साल मेहनत करना पड़ेगा करना पड़ेगा तुमको। तो यू जस्ट उदिता तो डिसाइड। बहुत ही मेहनती लड़की रही है, उदिता वेरी सिंसियर, इंटेलिजेंट और रेगुलर स्टूडेंट थी। मुझे इसका बैच हाँ बहुत मैम। ही अच्छा था, मुझे याद है उदिता, प्रियंका, अंकिता, ये सब थे। फिर उदिता की राइटिंग बहुत अच्छी थी। मैंने मैम बस उदिता वो को एक कॉलेज में ही दिन रही, बोला उसके था, बाद नहीं अच्छी हो पाई। वन डे यू विल टॉप द यूनिवर्सिटी। हाँ और मैम। प्रियंका त्रिपाठी भी थी इसके साथ, उसको हाँ भी मैम। मैंने बोला था। तो जब उसको वाइस चांसलर अवार्ड मिला था यूनिवर्सिटी में, पहला कॉल किया उसने मुझे रात में कि मैम आपने मुझे एक बार बोला था कि तुम लाती हो अवार्ड, और आज मुझे हाँ बहुत मैम। अच्छा लग रहा है देख के। बस मैम रियली मैं नहीं ला पाई वाइस ऐसे भी चांसलर। स्टूडेंट थे बहुत अच्छे। मेरा फर्स्ट बैच है ये उदिता हाँ वाला। मैम, मैं नहीं ला पाई वाइस चांसलर क्योंकि मेरे सेवेंथ सेमेस्टर आई गेस, यस सॉरी सिक्स सेमेस्टर में पता नहीं किसने मेरी कॉपी चेक की, मुझे इतने कम मार्क्स दिए और मेरा सारा एग्रीगेट बिगड़ गया। तो बट अदरवाइज या बट आई नेवर रिग्रेट कि मुझे ऐसा कुछ कम आया। हाँ, सो आई थिंक एवरीवन शुड फोकस कि उसको क्या चाहिए अपनी लाइफ में। एंड आई थिंक ये लाइन हमेशा याद रखनी चाहिए कि अपने 4 साल मेहनत की जिंदगी बितानी है या 40 साल मेहनत करना है। तो अगर तुम 4 साल मेहनत कर लोगे तो अपने 40 साल तो आराम की जिंदगी से सो पाओगे चैन की नींद। सो यस, दैट्स इट। तो मेरा बस यही हमेशा से फोकस रहा कि ऐसा नहीं है कि लाइक आई वाज इन हॉस्टल। ओके, मैं कॉलेज हॉस्टल में रहती थी एंड फॉर अस इट वाज मैंडेटरी टू गो टू कॉलेज। मतलब हर दिन कॉलेज जाना ही जाना है, कोई ऑप्शन ही नहीं है वहां पे। आप बीमार हो तब भी कुछ ऐसा इमरजेंसी है तो ही आप घर पे रह सकते हो। तो उस केस में था कि चलो ठीक है, स्कूल अगर कॉलेज जा रहे हैं तो फिर भाई आए क्यों यहाँ पढ़ने। तो अब पढ़ाई लिखाई भी करना चाहिए। बट हाँ, और एक चीज और मैं बोलना चाहूंगी स्पेशली टू बॉयज, उन लोग दोस्ती यारी में बहुत ज्यादा रहते हैं। मतलब पता नहीं बट जैसे मैं फील करती हूँ कि मुझे मतलब अगर दोस्त लोग बोल दे कि आज जाना है तो यहाँ जाना है तो मतलब दे विल अग्री एंड गो। और लड़कियों का ये है कि शॉपिंग के लिए जाना है तो तुम ये सोचो कि आज तो तुम अपने मम्मी पापा के पैसे से शॉपिंग कर रहे हो, राइट। 4 साल के बाद खुद के पैसे से शॉपिंग करोगे तो ज्यादा मजा आएगा, और तब उस पैसे से तुम अपने मम्मी पापा को भी शॉपिंग करा सकते हो। तो ये सब चीज आई एवरी टाइम आई यूज टू रिमाइंड माई सेल्फ कि वाई आई एम हेयर एंड वॉट आई हैव टू डू इन माई लाइफ, उसके बाद ही मुझे कुछ मिलेगा। तो उस वक्त ऐसा था कि मेरे हॉस्टल में 10 लोगों लड़कियों का ग्रुप था जिसमें कि 9 जाते थे मार्केट और मैं नहीं जाती थी। फॉर दैट मैटर मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता था कि ओके लेट इट बी, मुझे क्या है, मुझे अभी का नहीं देखना, मुझे अपना फ्यूचर देखना है, राइट। तो आई ओनली से एवरीवन की डजेंट मैटर कि कौन सा कॉलेज है, क्या फैकल्टी पढ़ा रहे हैं, क्या नहीं, यू हैव टू गिव योर बेस्ट। अगर आप अपना बेस्ट दोगे तभी आप आगे जाके रिग्रेट नहीं करोगे। एंड मेरे साथ ऐसा था कि आई वाज टॉपर। मैं मतलब सेकेंड सेमेस्टर से मैं टॉपर थी बट मेरा प्लेसमेंट नहीं हुआ इन कैंपस। तो दैट वाज रियली फ्रस्ट्रेटिंग। इवन एवरीवन यूज्ड टू आस्क कि उदिता प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। सर जो भी टॉपर्स थे सबका प्लेसमेंट हो रहा था बट मेरा नहीं हो रहा था बिकॉज आई वाज नॉट एबल टू क्लियर माय रिटन। फोर्थ ईयर वाले अगर हैं तो दे नो कि पहला रिटन होता है जिसमें कि आपको एप्टी, रीजनिंग, इंग्लिश, इवन कंप्यूटर सबसे क्वेश्चंस आते हैं। मेरा कभी मैं आईबीएम में बैठी, मैं इन्फोसिस में बैठी, मैं टीसीएस में बैठी, पता नहीं शायद मैं पता नहीं मैं कितने सारे कंपनी में बैठी अपने कॉलेज टाइम पे, बट मेरा कहीं कैंपस मेरा रिटर्न नहीं निकल रहा था। और फिर मुझे एक टाइम पे लगा कि मैं क्या कर रही हूँ, व्हाट आई एम डूइंग, व्हाट आई विल डू विथ दिस अवार्ड, ये मार्क्स लेके तो मैं कंपनी में नहीं
मुझे लेंगे, राइट, कि ये टॉपर थी तो चलो इसका रिटर्न निकाल देते हैं and इसको कंपनी में ले लेते हैं, राइट। वो तो उस वक्त कुछ नहीं कोई सोचता। देन आई वाज लाइक स्टार्ट रिग्रेटिंग माई सेल्फ कि मैं क्यों हूँ यहाँ पे, मतलब मैंने क्या किया 4 साल 7 सेमेस्टर मैंने क्या किया, सिर्फ पढ़ाई करती रह गई, कुछ प्लेसमेंट तो हो नहीं रहा। देन स्नेहा मैम थी IT HOD दैट आई डोंट नो वेदर शी इज हियर और नॉट। मैंने मैम को बोला, मैम बोली क्या हो रहा है उदिता कहीं प्लेसमेंट नहीं हो रहा तुम्हारा। मैंने बोला मैम क्या करूं, मैं पढ़ती तो हूँ फिर पता नहीं क्यों। तो उन्होंने मुझसे कहा कि उदिता कुछ लोगों को आसानी से हर कुछ मिल जाता है और कुछ लोगों को मेहनत करनी पड़ती है, तो तुम दूसरे कैटेगरी में हो। तो मैंने बोला ठीक है मैम, मैं मेहनत जरूर करती रहूंगी। देन आई इंटरेक्टेड विद वन ऑफ माय कलीग, आई मीन सॉरी नॉट कलीग, माय बैचमेट। वो एस कॉलेज की थी एंड एवरी टाइम शी यूज्ड टू क्लियर हर रिटर्न, एवरी टाइम, मतलब उसका परसेंट रहता था 70s में बट वो रिटर्न क्लियर कर लेती थी। तो मैंने उससे पूछा भाई ऐसा क्या राज है तुम्हारे उसमें कि तुम हर कुछ निकाल लेती हो। देन शी टोल्ड मी कि सी आई डोंट नो एप्टी, बस मेरा रीजनिंग अच्छा है तो मैं पहले रीजनिंग बनाती हूँ। देन आई सेड ओके यार इट्स गुड, मतलब पहले जो तुम्हारा बेस्ट है तुमको उसमें देना चाहिए एंड यू हैव टू मेक श्योर कि तुम किसी एक चीज में बेस्ट हो, राइट। देन मैं रुकी, मेरा सब हो गया और उसके बाद सारे मतलब एग्जाम खत्म हो गया, तभी मैं 1 महीने हॉस्टल में रुकी थी इन केस कि इफ एनी कंपनी विल कम देन आई विल सिट एंड प्ले, मतलब मेरा प्लेसमेंट हो जाए, बट नहीं हुआ। देन मेरे पापा ने बोला बेटा तुम घर आ जाओ 1 महीना रहो, माइंड फ्रेश करो एंड देन यू गो एंड देन सर्च मिल जाएगा। आफ्टर दैट आफ्टर 1 मंथ आई वेंट टू पुणे और वहां पे विद इन 10 days देयर वाज वन ऑफ कैंपस फॉर वोडाफोन। तो सोचो ऑफ कैंपस जहाँ पे कि तुम्हें दुनिया मतलब 13 और 14 बैच भी थे एंड वहाँ पे 1350 लोग थे, आई मीन 1350 लोग आए हुए थे वहां पे। ओके, भीड़ को देख के ही मेरा दिमाग वो हो गया कि भाई कॉलेज में नहीं निकाल पाई तो यहाँ क्या निकालोगे। बट अगेन आई मोटिवेटेड माई सेल्फ कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये भी कोई सुपीरियर नहीं है, सब वहीं से पढ़ के आए हैं। बस बस एक चीज मैं उस 1 महीना तक फॉलो करते रही, आई गेव माई बेस्ट टू माई रीजनिंग जो कि मेरा प्लस पॉइंट था। इंग्लिश, मेरा मैथ्स एप्टी उतना अच्छा नहीं था तो मैं उस पर उतना फोकस नहीं करती। एंड देन माई टेक्निकल, बहुत सारे वेबसाइट है इंडिया बेक्स एंड ऑल जहाँ पे कि तुमको देख सकता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, कैसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कंपनी वाले। एंड और बेसिकली एक चीज और कि रूमर्स से बच के रहो, जो नहीं पढ़ते वही रूमर्स फैलाते हैं, मेरा तो यही मानना है। जिनको जो पढ़ते हैं उनको कोई मतलब नहीं होता है। तो फिर मैं वहां गई एंड मैंने वहां वही फंडा अपनाया, पहले मैंने रीजनिंग बनाया फिर इंग्लिश फिर कंप्यूटर पे एंड देन आई वेंट टू मैथ्स। मेरा रिटर्न निकल गया, मेरा GD निकल गया, फिर और मोटिवेशन आ गया कि ओके अब तो बस थर्ड राउंड है, इफ आई विल क्रैक दिस देन आई विल गेट माय जॉब, राइट। और कॉलेज में जब कंपनीज आती थी तो दे वर ऑफरिंग 3.2 3 lakhs, उस 2.4 उसमें हम लोग सोचते थे यार हो जाए 10,000 की भी नौकरी दे दे, मतलब ऐसा माइंडसेट हो गया था। बट मतलब जब मैं सोचती थी यार सबका हो रहा है मेरा नहीं हो रहा तो शायद कुछ अच्छा होने वाला है। दैट माइंडसेट आई वाज हैविंग, पॉजिटिव माइंडसेट कि मैं मेहनत कर रही हूँ तो मेरे को अच्छा मिलेगा मिलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस दैट थिंग इज थोड़ा लेट मिलेगा बट मिलेगा। देन मैंने अपना उस रात शायद मैंने जावा C++ DBMS मतलब शायद मैंने पूरा इंजीनियरिंग पढ़ डाला उस रात को, क्योंकि मुझे ये था कि आई हैव टू क्रैक माई इंटरव्यू एट एनी कॉस्ट, चाहे जो हो जाए बाद में मुझे रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मैंने अच्छा नहीं किया। देन द नेक्स्ट डे interviewer he asked few questions, what is your name, brief me about yourself, and then लड़की हूँ तो एक ही बात कि 5 साल बाद शादी हो जाएगी तो क्या, मतलब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम अपना करियर कैसे देखती हो। देन आई आंसर्ड कि शादी करने के लिए मम्मी पापा ने मुझे इंजीनियरिंग नहीं कराया है, सो आई हैव टू बी इंडिपेंडेंट। एंड द फोर्थ क्वेश्चन वाज he read my resume and in my resume in my achievements it was mentioned that I topped third semester fourth semester in group and all. He asked okay तुम top you were topper in your college, I said yes. I said, oh nice. Then he asked me about my final year project, I explained him, he said okay fine go. I was like सिर्फ 10 मिनट, इंडिया बिक्स पे तो पूरा चिट्ठा लिख के रखते हैं कि ये फिर उस पे fresher.com, मतलब कहाँ कहाँ
आई थिंक फनी डेल वाले रिलेट कर रहे होंगे कि मैं किस किस वेबसाइट का नाम बोल रही हूँ। मतलब वहां पे तो पूरा लिख के बैठते हैं कि ये पूछा वो, मुझसे मुझसे कुछ नहीं पूछा, सिर्फ 5 क्वेश्चन, और मैं कैसे समझू कि मेरा हो गया। एंड आफ्टर 1 week I got offer letter and I got the offer of 4 lakhs, जो कि मेरे बैच में किसी को भी नहीं मिला था। As a fresher, if you are starting your career with 4 lakhs, I think it's great. Nowadays it's like more than 5-6 ऐसा है, but हम लोग अपने आप को बहुत अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं, अपने टैलेंट को बहुत अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं, तो उस वजह से हम लोग फंस जाते हैं। दैट्स इट। तो मेरा बस यही कहना है कि डू योर बेस्ट, रिग्रेट नहीं होना चाहिए। 100% दोगे मिलेगा। जिस टाइम पे मैं रिग्रेट कर रही थी कि टॉपर होने का क्या मतलब है, आज वही चीज मेरे HR राउंड में मेरे को काम आई। That interviewer he asked the only one question कि तुम टॉपर थी अपने उसमें? मैंने बोला हाँ। ओके फाइन, ठीक है। 5 मिनट्स में मेरा इंटरव्यू हो गया एंड ही सिलेक्टेड मी। और उस 1350 स्टूडेंट्स में से ओनली 140 वाज सिलेक्टेड एंड आई वाज इन दैट कैटेगरी। तो और मेरा ज्वाइनिंग सितंबर में हो गया, और मेरे जितने भी जिनका भी प्लेसमेंट हुआ था इन कॉलेज, उनका ज्वाइनिंग लेटर आया ही नहीं था। तो और मैंने अपना करियर भी शुरू कर दिया जब मैं जून में, मेरा रिजल्ट आया 30th जून को, जुलाई अगस्त, आफ्टर 2 months ओनली मेरा करियर शुरू हो गया। एंड टचवुड अभी तक बेस्ट ही चल रहा है। सो यू जस्ट फोकस ऑन योर फ्यूचर एंड गिव योर बेस्ट इन योर प्रेजेंट, दैट्स इट। और कोई कुछ नहीं है। ये 4 साल की ही जिंदगी तुम्हारे अगले 40 या 50 साल को डिसाइड कर सकती है। एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन समथिंग कि नहीं, तुम जैसे मेरे को कोडिंग नहीं आती थी, टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे नहीं आती थी। तो yes, so you have to be focused. And yeah, so these are some of my college picks which we clicked on Teachers Day and when we ended our 6th semester. So I am here in the corner and here यहाँ पे, and ये director sir है and ma'am है। I don't know whether all are here or not, but okay, so now let's come to cyber security. हम लोग what is cyber security, right? बहुत कुछ सुना, Java. Udita. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now it is, I think, 11:25 and we have only 15 minutes. So Yes, you ma'am. जल्दी अपना वर्क प्रोफाइल बता दो। 10 मिनट्स का मैसेज आ गया है मुझे, यानी वी हैव ओनली 10 मिनट्स, तो 5 मिनट्स बता दो एंड आफ्टर दैट इफ क्वेरी होगी तो स्टूडेंट्स आपसे ऑनलाइन भी पूछ सकते हैं। आप अपना नंबर एंड मेल आईडी। ओके मैम। यस मैम, यस मैम, श्योर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद हम लोग क्या काम करते हैं, व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। Cyber security, okay. Cyber means to protect your system, to protect your computers. So that's what we are doing. We are protecting our website. Okay, so ये सारे content आपको Google पे मिल जाएंगे, but right now I'm only focusing on कि मैं क्या काम करती हूँ, how we are doing securing our website. Okay, so let's go to the next slide. What is actually PKI? PKI is public key infrastructure, where what we are doing, we are securing our internet information. Whatever information is available on internet, we are securing it. एंड सी बहुत सारे सिक्योरिटी इश्यूज हैं जिनकी वजह से हम लोग सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, लाइक तुम्हारे प्राइवेसी को कोई डिस्टर्ब कर सकता है, तुम्हारे ऑथेंटिकेशन मींस तुम्हारे बदले कोई और लॉगिन कर रहा है या अपना पासवर्ड दे रहा है। एंड देन इंटीग्रिटी मींस कि मैं अंजना मैम से कुछ बोल रही हूँ, अंजना मैम अर्चना मैम को कुछ और बोल रही, सो दैट इज इंटीग्रिटी, वो सही मैसेज पास नहीं हो रहा है। ओके, सो एंड नॉन रिप्यूडिएशन मींस कि मैंने कुछ बोला अंजना मैम को एंड शी डिनाइड कि नहीं, मैंने तुमसे ये बात नहीं की। ओके, सो दीज ऑल थिंग्स वी प्रोटेक्ट ऑन इंटरनेट, ऑन वेबसाइट। I think third year and fourth year they might be aware of RSA, public key algorithm, hashing algorithm, SHA-256, DES, तो क्योंकि उनका numericals होता होगा इस पे। So I'm not going deep into this, but what my focus is to just show you what I am doing. So basically I'm encryption. Encryption is like it's just to what do you say, it's the process to just encode your message so that unauthorized party cannot access it, so that's why it's called encryption.
तो जब भी आप कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको एक पॉपअप आता होगा SSL/TLS हैंडशेक समथिंग लाइक दैट, सिक्योर कनेक्शन, यू आर कनेक्टिंग टू अ सिक्योर गेटवे, व्हाट इज दैट? सो वो हम लोग यहाँ इंक्रिप्शन के थ्रू प्रोवाइड करते हैं। ओके, सो अगेन ये सब इंटरनेट पे अवेलेबल है, इवन फोर्थ ईयर वाले और थर्ड ईयर वाले पढ़ भी रहे होंगे सिमेट्रिक कीज क्या होते हैं, एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन क्या होता है। सो आई विल नॉट टेक मच टाइम। सो जस्ट की सिमेट्रिक में एक की यूज होती है फॉर इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, and in asymmetric 2 keys are used. Okay, so this is how the picture is for asymmetric, जिसमें कि sender ने भेजा hello packet, encrypt हुआ, then decrypt होगा, but it will be decrypted with their private key only and the recipient public key. Okay, so this is public key cryptography. Yeah, this is what I want you guys to show. So ये हम लोग प्रोवाइड करते हैं, दिस इज द डिजिटल सर्टिफिकेट. सो व्हेन आई विल जस्ट 1 second just show you the website. Can you see my screen? Yes, ma'am. What you can see? Google. No, presentation, digital Slide, certificate. ma'am. Okay, just a moment. कहाँ गया? जा रहे हैं. Okay, अब SBI दिख रहा है वेबसाइट? Yes, ma'am. Oh God, मैंने गलत जगह ओपन कर लिया है. 1 minute. इंटरनेट एक्सप्लोरर. योनो SBI दिख रहा है. हाँ मैम, वो नहीं, मुझे इंटरनेट एक्सप्लोरर का SBI चाहिए था. अभी दिख रहा होगा इंटरनेट एक्सप्लोरर का SBI, राइट? ऊपर में ये ग्रीन कलर दिख रहा होगा आप लोगों को, है ना? Yes, yes. Yes. So this is what I'm doing. Like we are providing the certificate to the organization or within the organization also to secure our website. तो ये देखो, जब whenever ये क्या है, ये बता रहा है कि हमारा encryption का sign है ये, कि ये encrypted है. Okay. तो यहाँ पे देखो आया है DigiCert Global Roots G2. It means DigiCert is a vendor जो कि certificates provide करता है. So when you will click on view certificates, you will see. So this is the certificate which my team is providing to the user. User means within the organization or outside the organization. जैसे TCS वाले अगर आके बोल रहे हैं कि हमें ये बैंकिंग चीज को सिक्योर करना है तो हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो कैन यू जस्ट प्रोवाइड अस, तो हम लोग उनको ये प्रोवाइड करते हैं. एंड देन इस सर्टिफिकेट का मेंटेनेंस, इनका डेटा, हर कुछ अपने साइड हम लोग सिक्योर करके रखते हैं. ओके, सो आई एम जस्ट शोइंग यू कि लाइव में ये कैसा चल रहा है. तो ये देखो, ये है सिग्नेचर एल्गोरिथम SHA-256. इट मीन्स इट इज SHA-2 सर्टिफिकेट, not SHA-1. ओके, सो इसका इशुअर कौन है? DigiCert. एंड देन वैलिड कब से? 8 जुलाई से ये वैलिड है 2020 से. 24 जनवरी 2022 को ये एक्सपायर हो जाएगा. सो इट मींस SBI वालों को 24 जनवरी से पहले 2022 से पहले इसको रिन्यू करना है, अदरवाइज ये वेबसाइट डाउन हो जाएगा. जैसे तुम कभी भी कोई भी कनेक्शन रिक्वेस्ट करते हो तो तुमको वहां पे लिख कर आता है दिस वेबसाइट इज नॉट सिक्योर, आर यू श्योर यू वांट टू प्रोसीड, राइट? ऐसा कुछ आता होगा हमेशा रेड कलर में. तो तुम हमेशा करते हो कि एडवांस पे क्लिक किया एंड वी प्रोसीड, बट दैट इज नॉट द करेक्ट प्रोसेस. प्रॉब्लम ये है कि या तो वहां पे सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं है, इसलिए वो तुम्हें वो एरर आता है. ठीक है, actually it will take one lecture to describe me about only all these fields. तो मैं बस बता रही हूँ कि यहाँ पे हम लोग क्या काम करते हैं. So we are providing these certificates and we are checking whether any interruption is not there. अगर जैसे ये expire in case impact तो नहीं आ रहा, अगर certificate expire हो जाएगा तो many users won't be able to access the website, right? So in that case it will be a huge impact. So to overcome that impact we are taking steps कि प्रोएक्टिवली हम उनको बताते हैं कि तुम्हारा सर्टिफिकेट एक्सपायर हो जाएगा, so it's better to renew before it. Server authentication and client authentication is the major part because it will show you that यहाँ पे सर्वर भी ऑथेंटिकेट कर रहा है अपने आप को और क्लाइंट मींस मैं भी अपने आप को यहाँ पे ऑथेंटिकेट कर रही हूँ, अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड दे रही हूँ. दैट्स व्हाई आई एम एबल टू एक्सेस SBI. यहाँ पे मुझे दोनों चीज का जरूरत है. किसी वेबसाइट में सिर्फ तुम्हें सर्वर दिखेगा क्योंकि वहाँ पे एज ए क्लाइंट की तरफ से उनको कोई इंटरेक्शन नहीं चाहिए होता है. किसी भी समय डिस्कनेक्ट हो जाएगा. यस मैम, अब मैं लास्ट स्लाइड पे कर दे,
स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर दे तो मैं सर्टिफिकेट ma'am. शो कर देती हूँ एंड स्टॉप कर दो स्क्रीन शेयरिंग हाँ मैम। एंड वासु अच्छा लग स्टार्ट रहा है कर दो थैंक्स वोट ऑफ थैंक्स मैम मैंने स्टॉप कर दिया है। मैं एक मिनट सर्टिफिकेट शो कर दूं इसका एक्चुअली इस 30 मिनट्स में ये मैं इतना कवर नहीं कर पाती जितना भी। वही तो एक्चुअली तुम टाइम नहीं दे फिर पा रही से थी आना ना उदिता या तो ऑफलाइन I, Vasu Saxena, Anjana student ma'am, of third year, CSE department. Thanks to Miss Udita Bahadur for delivering such a intellectual and inspiring session. Thank you so much. Lastly, I thanks to SIRTE CSE department for organizing informative session which helps student in their future. Thank you so much. Thank you. And I'll share my email ID with Anjana ma'am. And if you have any queries, then do reach out to me. Okay. Thank you, ma'am. Yeah. okay Thank you, okay okay Thank Vadita, you. now we have 1 minute or more Thank then you, you ma'am. can talk 1 minute नहीं मैम अब आप लोग थैंक यू सो मच यहाँ बुलाने के लिए। और Again, मैं देखी again, थी कि मेरे सीनियर्स आके बोलते हैं। एक मिनट अपने एचओडी मैम आप हैं थोड़ा सा कुछ बोल दीजिए एचओडी मैम भावना मैडम और डीन सर से तो बात हो गई है इफ एचओडी मैडम हो तो कुछ आई थिंक लीव कर गई है एचओडी मैम चलो यस अर्चना मैडम ओह स्नेहा मैम इज देयर। मैम मुझे तो इतने अच्छा लगा मैं बता नहीं सकती हूँ क्योंकि उदिता मेरी बहुत बहुत फेवरेट स्टूडेंट रही है बहुत ही ज्यादा। उसको देख के ऐसा लगता है कि इसको मैंने पढ़ाया और अभी यह इतना अच्छा बोल रही है। खैर टैलेंटेड तो वो थी शुरू से आई नो उदिता हर चीज में बहुत अच्छी थी लेकिन उदिता यस मैम यस मैम। भावना मैडम थैंक यू फॉर कमिंग स्नेहा मैम मैंने आपकी बात बताई सबको कि आपने मुझसे कहा था कि उदिता कुछ लोगों को मेहनत करनी पड़ती है कुछ लोगों को बिल्कुल ऐसे मिल जाता है तुम दूसरे कैटेगरी में हो मेहनत करनी पड़ेगी तुमको। योर मैम बस पावर मैं इज वही वेरी हाई एंड कुछ